from the heart of Ayodhya, where history is being etched literally in the stones. So this particular monument that you are watching on your TV screen is being built in the traditional Nagar style. The temple has a length of around 380 feet, a width of 250 feet, and of course, its height is 161 feet. The temple will be a 3-story building with each floor being 20 feet tall. And in fact, it will also be having total number of 392 pillars and 44 doors. Ayodhya, Ayodhya, ae mere pyare Ram. The pillars of the Ram temple will be adorned with inscriptions of gods and goddesses. The entry to the temple would be from the east, with 32 stairs to be climbed through the Singh Dwar. A parkota, or a rectangular compound wall, 732 meters in length and 14 feet wide, surrounds the mandir. There are 4 temples at the 4 corners of the compound, dedicated to Surya, Bhagavati, Ganesha and Shiva. And within the complex itself, there are proposed temples dedicated to the man who composed the Ramayana, Maharishi Valmiki, and also sages Vasishtha, Vishwamitra, Agastya, Nishad Raj, Mata Shabri and Devi Ahilya. In the southwestern part of the temple complex, an ancient temple dedicated to Lord Shiva has been restored and a statue of Jatayu has also been installed. Pillars are said to be the soul of any monument, and this magnificent building will be held by near around 394 pillars. And these pillars, of course, because they are the part of Sri Ram temple being built in the city of Ayodhya, they are not just mere pillars. These 394 pillars are unique pillars in themselves. The reason being that each pillar will be telling you a story, and the murtis that are being uncarved on these pillars have been made by the special artists from each and every corner of this country. सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इन पिलर्स की क्या खास बात रहेगी और कितनी मूर्तियां इस पिलर पर रहेंगी और क्या क्या रहेगा? ये जो विशेषता है इस पिलर्स की, ये जो मार्बल है, जो पत्थर है, राजस्थान का पत्थर है, और इसकी विशेषता ये है कि इसमें जब आप मूर्तियां गढ़ेंगे तो बहुत आसानी से सॉफ्टली वो मूर्तियां गढ़ी जाएंगी। दूसरी विशेषता ये है कि ये बहुत, जैसे हम कहते हैं कि 1000 साल तक का मंदिर ये रहेगा, तो इसकी टिकाऊपन जो है वो ऐसा है। ये पत्थर जयपुर से आए हुए हैं, ये वही पत्थर हैं? राजस्थान से आया हुआ है, ऐसा मानकर चलिए। और ये जो पूरा मंदिर की कार्विंग है वो हिंदू मान्यताओं में जो देवी देवता हैं, जिनकी मान्यताएं हैं, ऐसा इनकी कार्विंग हो रही है। दूसरा, इसके परिसर के आसपास कुछ मंदिर, कुछ ऐसी प्रतिमाएं होंगी जो राम के समकालीन वशिष्ठ ऋषि हैं, हनुमान हैं, वाल्मीकि हैं, उनके प्रतिमाएं वहां स्थापित होंगी। Manager Mr. Afle, Mr. Jagdish Afle from the trust is, and of course IITian, who has been contributing massively in this particular project. Thank you so much, sir, for speaking with Times Network. Sir, of course, the building, the structure, the monuments or the idols, the scriptures are, yes, the part of the epic history. But how are we connecting it with the latest technology? As far as the construction is concerned, in the engineering, we have taken help from IIT Chennai, IIT Mumbai, IIT Kanpur, IIT Guwahati and Delhi. We have also taken help from NGRI, that is National Geo Research Institute, National Institute of Rock Mechanics, and all the technological experts in India. I would say the crux of Indian talent. They have been a part of this particular work. Foundation is said to be the main part of this temple, and still the soil was still the 60 feet of M3 concrete and 3% of cement is being used. How did you get this breakthrough? This breakthrough, again, as I said, after we have studied the historical monuments, temples, we also studied the structures made in Europe and America, in India as well. And after consulting all these experts, we came up to a conclusion. Together, collectively, I would say it's a collective wisdom that this kind of a structure, as far as the soil is concerned, is feasible here
We had earlier tried for the pile construction, but it didn't go well. So we had to go in for a construction after removal of the sand, after removal of the things here, and going for a soil strengthening. The Ramlala deity that will be installed, in fact, over here in the sanctum sanctorium of this magnificent building. On the day of Ram Navami, the sun rays will be falling. That kind of technology is being used. Yeah. What is the technology? Is it some kind of artificial intelligence, or actually the sun rays will be falling? There is no artificial intelligence. It is something which is coming out of the architectural work. It is also coming out of the engineering requirements. The sun rays of the Madhyana Surya, that is by 12 o'clock noon, are coming right from the head. Those ones will be taken inside periscopically, and using lenses, using mirrors, we will be taking and diverting them to the sanctorium area where the Ram Lalla will be there, and they will be putting onto the overheads, All right. on the forehead. How proud it feels, sir. The history of 500 years and upcoming millions of years now. We are very much proud of it. I have been a part of initial phase when we were struggling to get the land. I was a part of it when we were trying to go for development of this particular thing. And from the day one, I have been a part of this trust engineering team. I am heading this particular team, and I am proud that number of people in my group, Larsen and Toubro, also TCE, they have been helping out of the way and seeing that the total structure, the complex development with the use of modern technology will be the best available in the recent years. बोलो जय जय श्री राम. The preparations for January 22nd have been elaborate, but who all will participate in the Pran Pratishtha ceremony, apart from the dignitaries who've been invited, which will include the Prime Minister? What are the rites and rituals that will be practiced? Tejshri Purandare spoke to Acharya Satyendra Das, the chief priest of the Ram Mandir. आचार्य जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आचार्य जी, प्राण प्रतिष्ठा 16 से 22 तारीख के बीच होनी है. सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, क्या प्रक्रिया होती है इसकी. देखिए, उस मूर्ति में जो नई मूर्ति बनी है, उस नई मूर्ति में वह जीव आ जाए और उसमें चेतना आ जाए, उसमें शक्ति आ जाए, यह सारे कार्यों करने के लिए तमाम अनुष्ठान हैं. वो सारे अनुष्ठानों के माध्यम से वह प्राण प्रतिष्ठा में, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन उस जीव आत्मा को उस मूर्ति में स्थापित करने का जो प्रक्रिया है वो पूरा की जाएगा. लेकिन उसके पहले हमारे तमाम देवी देवताओं हैं और तमाम प्रकार के अनुष्ठान हैं, वो सभी प्रकार के शुरू किए जाएंगे उसी मूर्ति में. उसी को नगर भ्रमण कराना है, उसको सरयू में स्नान कराना है. सरयू स्नान के बाद में उनको ला करके फिर जो प्राण प्रतिष्ठा की विधि है उसको प्रारंभ करेंगे. आचार्य जी, पहले दिन की यदि हम बात करें 16 तारीख की, तो यजमान उसमें कहते हैं कि प्रायश्चित करेंगे और उसके बाद सरयू घाट पर जाकर विष्णु पूजन करेंगे और साथ ही साथ गोदान भी करेंगे. इसका क्या महत्व होता है आचार्य जी? देखिए, इसमें बहुत महत्व है, क्योंकि प्रायश्चित करना, क्योंकि हर व्यक्ति को कोई न कोई ऐसे कार्य होते हैं जिस कार्य के कारण से बाधा उत्पन्न होती है, इसके दूर करने के प्रायश्चित किया जाता है. गोदान किया जाता है. गौ ही हमारे यहाँ गाओ विश्वस्य मातरम, गौ का पूजा की जाती है, गोदान किया जाता है. जिसने ये जितनी प्रक्रिया होती हैं वो उसी के लिए होती है जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाली मूर्ति है. यजमान की यदि हम बात करें आचार्य जी, तो इसमें यजमान कौन होते हैं? क्या हर दिन अलग अलग यजमान होते हैं? हाँ, वो परिस्थिति के अनुसार होते हैं कि हर दिन होते हैं और एक ही यजमान पूरा कार्य करता. दोनों प्रकार की प्रक्रिया है. इसमें कौन से होंगे जब अयोध्या में श्री राम विराजेंगे? इसमें अलग अलग यजमान होंगे, क्योंकि यजमान जो मुख्य हैं वो प्रधानमंत्री जी हैं. प्राण प्रतिष्ठा की जो कार्य क्रिया होगी उसमें यजमान के रूप में
माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे, उन्हीं के हाथों द्वारा वो सारी प्रक्रिया की जाएगी। 16 और आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी यजमान की भूमिका में 22 तारीख को जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आचार्य जी आप ये समझा पाएंगे कि कलश मूर्ति की भी 125 कलशों की भी इसमें पूजा की जानी है। कलशों का इसमें किस तरह से महत्व होता है? कलश जो होते हैं वो साक्षात ब्रह्मा के रूप होते हैं। कलश जो रखा जाता है वैसे वरुण देवता उसमें स्थापित किए जाते हैं। जो जल है वो वरुण देवता है और उसका आकार जो है वो ब्रह्म है। इसे ब्रह्मा और वरुण देवता के साथ साथ इसे कलश की पूजा प्रथम की जाती है और कलश पूजा ही वो साक्षी उसमें होता है कि किसी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो न हो। 22 तारीख को सुबह पूजन के बाद मध्याह्न काल में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसका अर्थ क्या हुआ और ये कैसे होना है? देखिए, सोच करके ये किया गया कि सबसे उत्तम जो समय है और वो वही समय है जिस समय की प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त निकाली गई है। जब जो शुभ काम करना होता है तो ग्रह दशाओं की अनुकूलता जिस दिन होती है उसी दिन उसको किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त पुजारी जी जो होंगे वो कौन होंगे? कौन इस प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करवाएंगे? प्रतिष्ठा की प्रक्रिया अलग है, वेदों में वर्णित है, कर्म कांड उसको कहते हैं। जिनकी जानकारी ये होगी वही कराएंगे और उन्हीं के वो पंडित चाहे काशी के हों, चाहे प्रयाग के हों, चाहे और जगह के हों, उनको बुलाया जाएगा जिससे प्राण प्रतिष्ठा के विधि जो जानते हों विधि विधान से। The construction requires intensive work, and we got an opportunity to speak to those who've travelled far and wide to do their bit to contribute towards a pious cause. The workers over here who are building the Sri Ram Mandir in Ayodhya are the soul of this particular historical movement. आप लोग कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? जुगानी। आप कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान जयपुर से हैं। आप राजस्थान से हैं और आप? हम भी राजस्थान से। अच्छा, कितने समय से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर? करीब 1 साल हुआ। करीब 1 साल हो गया। 1 साल में कोई ऐसी सबसे यादगार चीज लगी होगी आपको कि घर में ऐसा कुछ हुआ और आप जा नहीं पाए, या फिर यहाँ पर आप डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ? कोई समय प्रभु श्री राम की कृपा है, हमारी ऊपर आशीर्वाद है, घर वालों की चिंता नहीं, याद नहीं आती। हम यहीं दिन भर यहीं काम करते रहते हैं। कितना समय हो गया आप घर पे भी नहीं गए? हम 2 महीने हो गए मैडम। अच्छा, 2 महीने से घर पे नहीं गए। और आप? 2 महीना करीब। 2 महीना हो गया। कितने दिन आप कितने घंटे लगातार काम करते हैं? 14-15 घंटे काम करते हैं मैम। सुबह 8 बजे आ जाते हैं, रात को 9, 9:30, 10 बजे जाते हैं। अच्छा, तो आप पहले भी कहीं काम करते थे कंस्ट्रक्शन साइट? हाँ जी, मैं पहले बहुत किया है काम। पहले बॉम्बे किया था, हिमाचल और हिमाचल किया था। The people working for this temple have unique stories carrying with them. I am being joined by a 31-year-old Gyaneshwar who is a BLLB and in fact working over here, contributing in every way possible because he holds immense pleasure when he works for Lord Ram. Gyaneshwar, आप BLLB किया है आपने? जी You're a BLLB? जी, आपको सबको बेशक। अच्छा, जी, कहाँ से किया है? मैं प्रतापगढ़ से LLB किया था। चिंतामणि स्मारक महाविद्यालय से, वहाँ से मैंने किया था। यहाँ पे आप क्या काम करते हैं? यहाँ पे मैं पेंटिंग का काम कर रहा हूँ। अच्छा, पेंटिंग का काम कर रहे हैं। कितने दिन से लगातार काम कर रहे हैं? 2-3 महीने से लगातार काम कर रहा हूँ। प्रभु जी राम की सेवा कर रहा हूँ। और इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले से मैं पढ़ाई स्टडी कर रहा हूँ, तो UPSC की तैयारी कर रहा हूँ इस समय। यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं आप? मतलब यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट, यू आर अ BLLB एंड यू आर वर्किंग. It comes as a surprise when you meet people like Anant Kumar and Ramanand Yadav, who are in fact donating some part of their earnings for the construction of Ram Mandir in Ayodhya. They earn handful of amount over here in the city of Ayodhya where the construction of Ram Mandir is going on. But here Ramanand and Anant over here are in fact contributing their some of the amount that they have earned to the trust for the construction of Ram Temple. Ramanand ji, कब से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं 2 नवंबर से कर रहा हूँ। 2 नवंबर से कर रहे हैं। और आप अपना श्रमदान यहाँ पर कर रहे हैं, जो भी आपने यहाँ पर अभी कमाई किया है उसमें से आप अपना यहाँ पे श्रमदान कर चुके हैं? नहीं, 15 दिन का। 15 दिन का किया है। क्या कारण है और क्यों ऐसा लगा कि आपको करना चाहिए? हमको बहुत मैंने आस्था थी
जब से राम जन्मभूमि चालू हुआ तो हमको बहुत आस्था थी कि मंदिर में जाके आप प्रभु का मैं इसमें योगदान दूं और श्रमदान करूं। बहुत दिल में आस्था थी। मैंने किसी से जुगाड़ लगा के मैं यहाँ तक पहुँचा और मैं काम कर रहा हूँ राम जी के। यहाँ पे कैसे पहुँचे आप? हमारे गांव के बगल के एक सिपाही हैं, उनके मार्फत मैं यहाँ पे आया जी। अच्छा, तो अब कैसा लगता है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। माना मेरा जन्म सफल हो गया, ये मनुष्य ऐसा लगता है आपको? अच्छा। As for the Ram Lalla idol, the one that will be placed in the Sanctum Sanctorum, the one prepared by Arun Yogiraj, who hails from Mysuru in Karnataka, has been chosen. The trust had given him some specific directions, that the idol should look like a 5-year-old child and be 51 inches or 4.25 feet in length. Yogiraj selected the Krishna Shila stone from HD Kote to sculpt the idol. It took 2 months for him to visualize the idol, an exercise that involved taking approximately 1,200 photographs of children who were 5 years old. He then took 4 months to sculpt the idol. The idol will only be unveiled on the 17th of January. आचार्य जी, रामलला की जो मूर्ति वहां पर विराजमान होगी वो बाल रूप होगा। ऐसा क्या कारण है कि बाल रूप को चुना गया है, कि बाल रूप जो है वो वहां पर विराजमान होंगे? देखिए, वो राम की जन्मभूमि है और जहाँ उनका जन्म हुआ है, इसलिए जैसे जन्म होता है तो माता कौशल्या के गोद से वो पैदा हुई हैं, तो बालक रूप होना है उस जगह जहाँ उनकी जन्मभूमि है, जहाँ वो पैदा हुए हैं, इसलिए बालक ही रूप में पूजा होती है। और जब बालक से बड़े होते हैं तो और जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब होती हैं। तो इसलिए राम जन्मभूमि का मतलब है कि वहाँ राम के बाल अवस्था की ही बच्चा की पूजा होगी, क्योंकि वो उनकी जन्मभूमि है, वहीं वो पैदा होंगे। और राजभवन जहाँ होता है वह माता सीता के साथ राम गद्दी पर विराजमान होते हैं। और यह है कि बालक के रूप में उनकी पूजा हो, और बालक रूप राम के ध्यान, बालक के रूप से हमारे जितने भी दर्शक आवें उन्हीं का ध्यान धरें, क्योंकि बालक में कोई विकार नहीं होता। छोटा किसी की बालक हो तो लोगों को बड़ा आकर्षण देता है और बड़ा अच्छा लगता है कि देखो कितना सुंदर बालक है। इससे बालक में अधिक शक्ति होती है आकर्षण की, और ममता उसमें ज़्यादा वो उमड़ती है। इसलिए बालक के रूप में राम जन्मभूमि है, इसलिए बालक के रूप में ही वहाँ पर रामलला की प्रतिमा की स्थापित होती है। अभी तक इसी रूप में पूजा होती चली आई है। आचार्य जी, 2 मूर्तियों की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि एक अचल मूर्ति होगी और एक उत्सव मूर्ति होगी। क्या इनमें अंतर होता है क्या, और किस मूर्ति को यात्रा के लिए निकाला जाता है? देखिए, ऐसा है कि एक बच्चा है और बच्चे को एक जगह बैठा दिया जाए कि तुम ही रहो, ये होता है अचल मूर्ति। और चल मूर्ति होती है कि अपना खेलो कूदो, बाहर जा करके आंगन में घूम ऐसे भगवान राम अयोध्या में खेलते घूमते रहे, ठीक है ना, बालकों के साथ। तो उसी प्रकार से एक चल एक अचल होती है। चल मूर्ति ये होती है कि जिसे उत्सव मूर्ति कहा जाते हैं। अभी इस राम की जो अभी पूजा हो रही है ये चल मूर्ति है, और जो प्राण प्रतिष्ठा होकर के स्थापित की जाएगी वो अचल मूर्ति है। So the entire nation and beyond is looking ahead to the consecration ceremony. It promises to be a historic event to celebrate Maryada Purushottam Ram, who cannot be divorced from the civilizational identity of Bharatvarsha. In our next episode, we'll focus on how the temple town of Ayodhya has been completely transformed ahead of the consecration ceremony. The Saryu River holds a special place in the Ramayana, like a living being witness to the life of Ram and the events in Ayodhya. राम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, ये मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य भूप दशरथ जी के द्वारे खेले चारों भैया, हरि बोल। जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। So here we wrap up this special edition only on Times Network, giving you a glimpse
of how Ayodhya would be on 22nd of January. Here, right now, me Tejshri Purandare with video journalist Manoj from Saryu Ghat.